برادران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر جنت سے بھیجا ہے۔ جنت اس کا اصل مقام، انسانوں کا اصل مقام جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی ایک نافرمانی کی وجہ سے جنت سے ان کو زمین پر اتار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کا اصل مقام جنت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس غلطی کا اقرار کرتے ہوئے معافی کا طلبگار ہوا ان کلمات سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ نافرمانی کر کے کسی دوسرے کے اوپر کچھ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ یا تجھ کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے نافرمانی کر کے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو ہمارے گناہوں اور نافرمانی کو معاف نہیں کرے گا، ہم پر تیری رحمت نہیں ہوگی، اللہ تیرا دیا اگر ہم پر نہ ہو تو لنکونن من الخاسرین، دنیا میں کوئی سہارا، کوئی پناہ اور کوئی آسرے ہم کو جو ہے نہیں ملے گا۔ یہ جب دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو جو ہے منظور کر لیا، اور منظور کر کے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری توبہ کو منظور کر لیا، تمہاری مغفرت کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اب سیدھے ہم تم کو جنت میں نہیں پہنچائیں گے، بلکہ دنیا میں کچھ دنوں تک تم کو رہنا ہوگا، اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر، تمہاری اولاد پر قیامت تک دھیرے دھیرے کچھ ایسے ہمارے جو ہے قوانین آتے رہیں گے، اور ان قوانین کا بنیادی مقصد دو ہی ہوگا، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی، اگر ایمان اور تقوی کی سند تم نے حاصل کر سکا، تمہاری اولاد نے حاصل کر سکا، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، جس نے ایمان اور تقوی کو حاصل کر لیا، یہ سند رہنے سے ان کے لیے جنت حلال ہم نے کر دیا، انہی کے لیے جنت۔ تو محترم ہو، یہ دو چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اصل مقام کو انسان اگر چاہتا ہے کہ اصل مقام کو ہم حاصل کریں، یعنی اصل مقام جو ہمارا جنت ہے اس مقام کو ہم حاصل کریں، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ ایمان اور تقوی کو حاصل کرے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی رحمت، محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قوانین آسمان سے اللہ نے انسانوں پر بھیجا ہے، تمام قوانین کی بنیاد ہی ہے اور اصل مقصد ہے ایمان کا اور تقوی کا حصول۔ یہی چیز اب ہمارے اوپر جو شریعت لاگو کیا اللہ نے، تو ہر عبادت کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ مقصد ہے تقوی کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کہہ دیا کہ فمن تبع منی ہدایا، اس طرح کی آیت سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہماری ہدایت کو قبول کرے گا، ہمارے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو ہم نے اصل مقام ان کے لیے حلال کر دیں گے اور اصل مقام میں ان کو جگہ دے دیں گے۔ اور اگر دنیا میں کوئی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں کوئی اگر اپنی مرضی کے مطابق، تو مرنے کے بعد اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا یہ ہے فرق ہے کہ دنیا میں اگر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس طرح کی بہت ساری قرآن کے اندر آیاتیں ہیں کہ اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنے ہی جو ہے من کے مطابق زندگی گزارے گا، تو مرنے کے بعد فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کے قانون کے مطابق اس کو زندگی گزارنا ہوگا۔ اور دنیا میں اگر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا
تو مرنے کے بعد وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تو دنیا میں اگر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا تو مرنے کے بعد اس کو اللہ جو ہے ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دے گا کہ جو تم چاہو مرنے کے بعد تم کو جو ہے وہ ساری چیزیں اور سارا اسباب عیش و آرام کا تم کو ملے گا. آج جو آخری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی رحمت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہی ایمان اور تقوی کیا چیز ہے اسی کو سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگ وہ اصل مقام کو حاصل کر سکے، اصل مقام جنت کو حاصل کر سکے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی تفسیر کے لیے کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، ان کے عمل کا کیا طریقہ ہوگا، کیا جو ہے وہ کس طرح سے عمل کر پائیں گے، اس کا پوری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کے سامنے چھوڑ کر کے گیا. اور نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیثیت کو بتاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ آخری وقت میں، اس کے پہلے جو انبیاء آئے جو انسان دنیا کے اندر آئے، آخری زمانہ میں آخری وقت میں جو نبی ہم بھیج رہے ہیں ان کی حیثیت یہی ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ جو تم کو دے اس کو لو اور جس سے تم کو منع کرے اس سے تم روک جاؤ. یہ آپ کی حیثیت، آپ کی حیثیت. اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت اگر چاہتے ہو تو اس نبی کی تم کو اتباع کرنا ہوگا. تو یہ نبی کی یہ حیثیت ہے. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام کی تکمیل کر کے بتا دیا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ایک نعمت ہے اسلام، یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت پر ہم خوش ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر جو قانون نازل کرنا چاہتا تھا وہ سارے قوانین کو تم پر ہم نے نازل کر دیا، جس کو اللہ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو وہ اسلام نام کے جو اللہ تعالیٰ قانون نازل کیا ہے اس کے دو بنیادی اصول ہیں، دو ہی ہے، زیادہ دو سے تیسرا نہیں ہے. ایک کا نام ہے قرآن مجید اور دوسرے کا نام ہے قرآن ہی کی تفسیر احادیث صحیحہ. یہ دو ہی بنیادی چیز ہیں. شریعت کو سمجھنے یا زندگی کو خوشگوار بنانے، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے بس بنیادی چیز دو ہی ہے، یہ قرآن مجید اور اس کی تفسیر احادیث صحیحہ، جو قرآن ہی کی ایک تفسیر ہے جس کو علماء قرآن کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور احادیث صحیحہ کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. تو آج اور یہ اہل قرآن کچھ ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، مختلف اعتراضات اور اشکالات کرتے ہیں، وہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اتنا سمجھ لیجئے کہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے. حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا بالکل ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، ایک فرض ہے. اب زکوٰۃ کا مقدار بھی اللہ نے قرآن کے اندر نہیں ہے، کتنا نصاب ہوگا یہ نہیں ہے، کس قدر نکالنا ہوگا یہ بھی نہیں ہے. تو یہ جب تک حدیث کا سہارا نہیں لیا جائے گا تب تک قرآنی آیت پر عمل کرنا ممکن نہیں. اس طرح سے نماز کے بارے میں بھی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو احکام اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا ہے اور لوگوں پر نافذ کیا ہے، ان احکام پر عمل کرنا احادیث کے بغیر بالکل ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن و احادیث یہ وہ ایک مطلوع ہے، وہی مطلوع اور یہ ہے غیر مطلوع. آپ کے بارے میں یہ بھی قرآن میں کہا کہ وما ينطق عن الهوى
इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। नबी जो कह रहे थे ये अपनी तरफ से नहीं कहते थे, आप अपनी तरफ से नहीं कह रहे थे, बल्कि जो कुछ भी कहते थे आप जब तक अल्लाह के तरफ से वही नहीं आती, अल्लाह का इशारा नहीं हो जाता, तब तक आप कोई दीनी बात, दीन के ताल्लुक से कोई भी बात जो है उम्मत के सामने आप पेश नहीं करते। मुख्तसरन यह है कि इस्लाम की दो बुनियादी चीज है, इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने के लिए दो ही बुनियादी चीज है, और ये ईमान और तकवा को हासिल करने की यही दो चीज है, कुरान और अहादीस सही है। तो ये कुरान की तफसीर है। अहादीस के ताल्लुक से बहुत सारे अहादीस की किताबें जो हैं, और मुहद्दिसीन किराम ने अपने अपने तर्ज पर अहादीस की किताबों की तालीफ किया है, लेकिन उनमें से आज जिस हदीस की किताब का आखिरी दर्स और आखिरी बाब को पढ़ा गया है, आखिरी हदीस और आखिरी बाब को पढ़ा गया है, इनके ताल्लुक से यह इस किताब के ताल्लुक से ये उलमा का, आइम्मा का इत्तेफाक है। इस किताब के ताल्लुक से उलमा का इत्तेफाक है कि लैसा लहू नज़ीरुन फिल इल्मिल हदीस, लैसा लहू नज़ीरुन फिल इल्मिल हदीस, ये आइम्मा का इत्तेफाक है कि इसके इस तरह से दुनिया के अंदर जमीन और आसमान के बीच में इल्म हदीस में दूसरी और कोई किताब नहीं है। इसी तरह से इत्तेफाक है तमाम आइम्मा का कि अन्नहु असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह ताला, जमीन और आसमान के दरमियान में जितनी किताबें हैं, इन तमाम किताबों में सबसे सही तरीन किताब कुरान मजीद के बाद यह है सही बुखारी शरीफ है। इस किताब का मुकाम है। तो इस मुकाम के, इस हदीस के ताल्लुक से जिस हदीस का आखिरी बाब और आखिरी हदीस को आज की इस मजलिस में पढ़ा गया है, तो इस हदीस की किताब के ताल्लुक से आइम्मा का इस तरह का इत्तेफाक है कि असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह ताला सहीहुल बुखारी, और यह भी इत्तेफाक है कि लैसा लहू नज़ीरुन फी इल्मिल हदीस, इल्म हदीस में इसके तरह से और कोई किताब हदीस की नहीं है। इस किताब का पूरा नाम क्या है? इस किताब का पूरा नाम है अल जामिउ अल मुस्नदो अस सहीहो अल मुख्तसरो मिन उमूरे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। इस किताब का ये पूरा नाम है अल जामिउल मुस्नदो अस सही अल मुख्तसर मिन उमूरे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। इस किताब का ये पूरा नाम है। ये जुबानी तौर पर ऐसे सही बुखारी हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका मुकम्मल नाम ये है। और हर एक चीज जो नाम रखा गया है इस्म ब मुसम्मा है। अल जामिउ अस मुस्नदो अस सही हो, हर एक लफ्ज जो आया है, एक लफ्ज के जो है तफसील है, जामे की तफसील है, मुस्नद किसको कहते हैं, सही किसको कहते हैं, एक तफसील तलब जो है बातें हैं। तो इस किताब के बारे में, ये तो जो है किताब के बारे में हुआ। बाकी अब किताब के बारे में वो हो गया। उसके बाद अब जिसने इस किताब को जमा किया है, मैंने जिसने इसकी तालीफ की है, उनके हक में उलमा की राय, जिसने और लिखने वाले का नाम है मोहम्मद इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने मुगीरा इब्ने बरदिजबा अल जोफी अल बुखारी, इतना पूरा नाम है इस नसब। तो ये लिखने वाले का ये नाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल, बाद में मैं बयान करता हूं। तो ये मोहम्मद इब्ने इस्माइल, इनके बारे में उलमा का इत्तेफाक यह है कि उनका लक़ब है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, रासुल मुहद्दिसीन फिल कदीम वल हदीस, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़, ये जो है लक़ब है उनका। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, रासुल मुहद्दिसीन फिल कदीम वल हदीस, और एक उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़। ये तमाम आइम्मा का इत्तेफाक इस पर है। तो जिसने इसकी तालीफ की है, इनके ताल्लुक से
جو میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ آپ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم جو انہوں نے اپنی کتاب کی تالیف کیا ہے، یہ 6 لاکھ احادیث سے جو ہے نچوڑ اور ان سے تخریج کیا ہے۔ ان کو 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث میرے پاس نہیں ہے کہ لا اذکر اسنادہ، ایسی کوئی حدیث میرے پاس نہیں ہے کہ لا اذکر اسنادہ، میں نے جس حدیث کی سند میں نے روایات، میں نے سلسلہ روایات، جیسے ہم نے پڑھا ہمارے استاد اس طرح سے، تو ہر حدیث کی سند۔ اب بات دیکھیے، جو وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث صحیح حدیث ہم کو یاد تھی، ان 6 لاکھ صحیح حدیث سے ہم نے تخریج کر کے اس کے اندر یہ 7275 حدیث کو لایا ہے، 6 لاکھ سے تخریج کر کے۔ اب ان کے ذہانت اور ان کا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ 6 لاکھ احادیث جو ان کو یاد تھی اور ہر حدیث کی سند، اب دیکھا جاتا ہے کہ امام بخاری سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے یہ کچھ ثلاثیات ہیں، اکثر و بیشتر جو ہے یہ رباعیات ہے یا خماسیات ہیں، یعنی امام بخاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کسی حدیث میں 3 کا واسطہ ہے، کسی میں 4 کا واسطہ ہے، کسی میں 5 کا واسطہ ہے۔ اگر ایوریج پکڑا جائے کہ ایک حدیث میں 4 راوی ہیں، تو ایک حدیث کے 4 راوی کے سوانح حیات، ہم لوگ تو ایک آدمی کی سوانح حیات نہیں جانتے ہیں، اب ایک حدیث کے 4 راوی اور محدث کی سوانح حیات، تو 6 لاکھ حدیث میں اگر 4 ایوریج پکڑا جائے تو 4 6 24 لاکھ لوگوں کی سوانح حیات ان کو یاد، 24 لاکھ اتنے لوگوں کی سوانح حیات جو ان کے وہ کیسے تھے؟ جب تک یہ محدثین کرام ان کے جو ہے اٹھنے رہن سہن، ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے سلوک، ان کے برتاؤ، معاملات، ہر چیز کو گہرائی سے جو ہے لوگ دیکھتے تھے، اور اس کا جو ہے اس کے شناخت کرتے تھے کہ کس طرح سے ہے یہ۔ تو 24 اگر 6 لاکھ 24 لاکھ آدمی کی سوانح حیات ان کو یاد تھی۔ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی آپ خود کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ لا اذکر اسنادہ، تمام حدیثوں کی سند کو میں بیان کرتا ہوں۔ 6 لاکھ صحیح حدیث سے تخریج کر کے اس کے اندر لائے ہیں، 7275 دونوں جلد میں ہے، مقرر کے ساتھ تکرار کے ساتھ 7275 حدیثیں ہیں اس میں۔ اب اس حدیث کو، دنیا میں تو بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کی کتاب کو تالیف اور تصنیف کرنے کا اسباب کیا ہے؟ امام بخاری کو یہ خیال کیوں آیا کہ آپ اس طرح کی ایک حدیث، جبکہ اس کے پہلے موطا امام مالک تھی اور بھی دوسری کتابیں تھی، اس کے باوجود اس کتاب کو ان کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنا استاد اسحاق ابن راہوی، امام بخاری کا ایک استاد تھا، اور ان کے اساتذہ کی تعداد بھی 1000 سے زیادہ ہے، 1000 سے بھی زیادہ جو ہے ان کے اساتذہ کی تعداد ہے، ان کے شیوخ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوی کی مجلس میں میں درس میں تھا، ان میں تو آپ نے کہا کہ لو جمعت کتابا صحیحا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل مارکیٹ میں بہت ساری باتیں پھیل رہی ہے اور لوگوں کے سامنے موضوع احادیث بھی پیش کیا جا رہا ہے، عوام کل انعام، وہ ہر بات کو نبی کی بات سمجھ لیتے ہیں، فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ کون حدیث ہے اور کون حدیث نہیں ہے۔ اس لیے کاش کہ اگر تم میں سے کوئی تیار ہو جاتا ایسا ایک جو ہے مجمع تیار تالیف کرنے کے لیے، جس میں جو ہے صرف خالص صحیح حدیثیں ہو،
उस पर इमाम मोहम्मद इब्न इसहाक इब्न राहवई के इस तमन्ना को सुनने के बाद मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अपने दिल के अंदर इरादा किया कि मैं जो है इस काम के लिए इकदाम करूं, इस काम के लिए आगे बढ़कर जाऊं। ये उन्होंने जो है तमन्ना किया और अपने अंदर ख्वाहिश किया। ये उनकी ख्वाहिश थी और उनका इरादा था ही। इतने में एक रोज वो कहते हैं कि रात को मैं सो रहा था तो ख्वाब में आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा। और ये हदीस है, आप फरमाते हैं कि मन रानी फिल मनामे फकद रानी फाइन्न शैताना ला यतमस्सलु बी। ये नबी का फरमान है कि अगर कोई ख्वाब में हमको देखता है तो हकीकत में हम ही को देखता है। शैतान को अल्लाह इतनी कुव्वत नहीं दिया है कि हमारी सूरत को इख्तियार करके लोगों के सामने पेश कर सके। सबों की शक्ल सूरत इख्तियार करके पेश कर सकता है, लेकिन हमारी शक्ल को इख्तियार करने की जो है ताकत अल्लाह ने शैतान को नहीं दिया है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखता हूं कि आप सोए हुए हैं, आप पर जो है मक्खियां बैठ रही है। मैं एक पंखा लिया और पंखा लेकर आपके बदने अथर से ये पंखा के जरिए मैं उन मक्खियों को हटा रहा हूं। ये जब ख्वाब में देखा, इतने में नींद मेरी टूट जाती है। सुबह जब हुई तो मैं उस वक्त के मुआब्बिरीन ख्वाब के पास गया और उनसे मैंने इस ख्वाब को बयान किया तो उन्होंने मेरी इस ख्वाब की ताबीर यही बताया कि तुम्हारे जरिए से जो कि बहुत सारे गलत सलत हदीस, मौजू और झूठी हदीस नबी की तरफ निस्बत की जा रही है, तुम्हारे जरिए से वो खिदमत अल्लाह ताला लेगा कि तुम नबी की तरफ जो झूठी बातें निस्बत की जाती है उनको तुम जो है हटाओगे। इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब ये ख्वाब के ताबीर बयान करने वालों ने हमसे ये ख्वाब की ताबीर बयान कर दिया तो मैं पुख्ता इरादा कर लिया और पुख्ता इरादा करके लिए मैं आगे बढ़ा। चुनांचे मुख्तलिफ शहरों में सफर जारी रहा, लेकिन आपने इसकी तारीफ का सिलसिला को जो है जारी रखा, तारीफ का सिलसिला। और मुख्तलिफ शहरों में गए, इंसानी जरूरत पेश आती है, जहां यहां वहां जाने सफर करने की जरूरत आती है, लेकिन इस काम को कहते मैंने बंद नहीं रखा, शुरू किया। और मैं अपने ऊपर ये इल्तजाम किया कि किसी हदीस की सेहत और ज़ौक़ को परखने के लिए जो कसौटी नाक़िदीन हदीस ने बयान किया है, उन कसौटी पर हर हदीस को की सनद को मैं रखता, उन कसौटी से, उन कवानीन के रूह से जबकि हमको इत्मीनान होता कि यह हदीस सही है बिल्कुल, उस पर भी ज्यादा से ज्यादा यकीन लाने के लिए मैं गुस्ल करता और हर हदीस पर गुस्ल करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ता और फिर उसके बाद दुआ इस्तिखारा करता। जब पूरा का पूरा यकीन होता कि यह हदीस सही है, उसी को मैं इसके अंदर जो है रखता था, इसके अंदर जमा करता था। तभी तो हर हदीस, अब देखिए कि जो है 7275 हदीसों को उन्होंने लाया है अक़वाले सहाबा वगैरह को छोड़ करके। तो ये हर हदीस 7275 हदीस तो कितने मर्तबा उन्होंने गुस्ल किया, कितना मर्तबा उन्होंने गुस्ल हर हदीस के पहले, इसके अंदर रखने के पहले ही। तो ये इस तरह जो है उन्होंने एहतमाम किया है इस हदीस की किताब को तालीफ करने में। इसीलिए जो है आप कि इस किताब का ये मुकाम आइम्मा ने मुत्तफका तौर पर दिया कि लैसा लहु नज़ीर फी इल्मिल हदीस, मुहद्दिसीन ने दिया कि ये आइम्मा ने ये इत्तेफाक किया कि असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह ताला, ये अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब यही है। आपके बारे में भी यही कहा कि अमीरुल मोमिन फिल हदीस हैं आप, रासुल मुहद्दिसीन है, उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हैं आप की विलादत होती है जो है शहर बुखारा में 13 शव्वाल
जुमा का दिन 194 हिजरी में, 13 शव्वाल 194 हिजरी जुमा के दिन शहर बुखारा में आपकी विलादत होती है और आपकी वफात हो जाती है 13 दिन कम 62 साल की उम्र में 256 हिजरी में आपकी वफात होती है। ये एकम शव्वाल यानी शनिचर की रात, एकम शव्वाल जिसको चांद रात कहा जाता है, ये चांद या ईद उल फितर की रात, उसी रात को आपका इंतकाल हुआ और ईद उल फितर के दिन ही बाद ज़ोहर खरतंग में जो है आप मदफून हुए। आपके मदफून के ताल्लुक से यह बयान किया जाता है कि जहां आपको दफन किया गया, दफन करने के बाद आपकी कब्र से जो है ये खुशबू जो है फैलने लगी। आसपास से जो लोग भी गुजरते इस खुशबू का एहसास करते हुए वहां जाते और वो तबर्रुकन ये जो है कुछ मिट्टी वहां के लेकर के चलती। ये जो है वो मट्टी तो तमाम मट्टियों की तरह है, वो कब्र की मट्टी आम कब्रों की मट्टी की तरह है, लेकिन ये जो है सादी अलैहि रहमत ने कहा है जमाले हम नशी दर मन असर कर वगर नामन हमा खाकम की हस्तम। अल्लामा सादी ने ये जो है बताया है, गुलसिता उनकी ये किताब है कि जमाले हम नशी दर मन असर कर, आम कब्रों की तरह बहुत सारे लोग कम दफन किए जाते हैं कब्रों में, उनकी कब्र से ये खुशबू नहीं फैलती है, लेकिन जमाले हम नशी दर मन असर कर, ये पाकतीनत अल्लाह वाले मुत्तकी और ईमान और तकवा के आला दर्जा के ये हामिल शख्स जो है ये मट्टी के अंदर आए हैं, उनके अंदर जो सब खूबियां हैं, जो महासेन है, जो तहारत है, जो पाकीज़गी है, वो पाकीज़गी का असर हम मिट्टी पर हुआ और यही असर जो है लोगों में फैल रहा है। तो जमाले हम नशी दरबन असर कर वगर नामन हमा खाकम की हस्तम, ऐसे तो आम मट्टी की तरह हम भी हैं, लेकिन उनके दफन होने की वजह से हम पर ये जो है जमाल और ये खूबसूरती और ये पाकीज़गी आई है और जिससे जो है खुशबू फैल रही है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि आप एक आला दर्जा के मुत्तकी थे और हमेशा सुन्नत का पाबंद रहने की भरपूर कोशिश करते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को जो मुकाम देता है तो यूं ही नहीं देता है, ये मेहनत के बाद देता है। अब इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं। नबी को नबूवत मिली, उसके पहले की जिंदगी देखो, नबी को नबूवत और रिसालत मिली, उनकी रिसालत और नबूवत पाने से पहले उनकी जिंदगी जो किस तरह जफाकशी और किस तरह मेहनत और मुशक्कत से गुजरी है। नबी को कयामत के दिन हौज़े कौसर अता फरमाएगा तो अल्लाह ने कहा फसल ले रब का, वहां हुक्म हो रहा है कि नबी तुम जो है हमारे ही लिए रब जो है नमाज पढ़ो। तो ऐसे ही अल्लाह की तरफ से कोई नियामत आती है, ये तो वो नियामत के पहले हासिल होने से पहले कुछ मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल ये जो है सही उल बुखारी का आखिरी बाब, इसके अंदर बहुत सारे बाब हैं, उनमें से आखिरी बाब आज इस मजलिस में मुख्तसर बयान कर देता हूं। जो ये बयान बाब है क्या, बाबो कौलुल्लाह नज़ाउल मवाज़ीना अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुत तौहीद जो एक किताब है, जो आज इस किताब का आखिरी किताब है, किताबुत तौहीद, यानी फिरक़े ज़ाल्ला, बुनियादी तौर पर गुमराह फिरका जो इस्लाम का लोबादा ओढ़कर, इस्लामी लिबास पहनकर वो लोगों को धोखा देते हैं। उनमें से बुनियादी तौर पर है मुतज़िला है, बुनियादी तौर पर है खारिजी, राफिजी, हाँ, और जहमिया, कदरिया, ये लोग हैं। इन लोगों ने तौहीद का जो माना बताया है वो किताब सुन्नत का खिलाफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बयान करदा तौहीद के बारे में उन्होंने रद्द किया है कि तुम लोगों ने तौहीद का जो माना समझा है ये गलत है, बल्कि किताब और सुन्नत से तौहीद
کا माना यह है, खुलासा उसका यह है कि उन लोगों ने आसमा व सिफात का इनकार किया है। उन लोगों ने अल्लाह के जैसे समी है, बसीर है, और कुरान में हाथ का जिक्र है, अल्लाह का चेहरा का जिक्र है, आंख का जिक्र है, तो ये सब का उन लोगों ने इनकार किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, या ये तमाम मुहद्दिसीन किराम की ये राय ही है, जो सहाबाई किराम का भी यही मसला था कि कुरान और हदीस के अंदर नबी के अल्लाह ताला के जो सब औसाफ बयान हुए हैं वो वही उसी तरह मानना होगा और उसको यकीन करने होगा, लेकिन वो मखलूक के तरह से नहीं है जिसको साफ तौर पर अल्लाह ने कहा दिया लैसा कमिस्लिही शैउन। तो इसमें भी इस बाब का मकसद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है मुतज़िला एक फिरका है उसका रद्द करना। मुतज़िला फिरका जो उनका एक अकीदा है, उस अकीदा का रद्द करने के लिए इस बाब को इमाम बुखारी ने कायम किया है। बाबो कौलिल्लाह नज़ाउल मवाज़िन अल क़िस्ता, उनका मकसद है कि मुतज़िली क़यामत के दिन अल्लाह लोगों के अमाल को वजन करने के लिए मीज़ान कायम करेंगे, इसका वो इनकार करते हैं। मुतज़िली कहते हैं कि मीज़ान वजन कुछ नहीं होगा। तो इमाम बुखारी का रवैया और उनका शेवा यह है कि वो किसी मसला को बयान करते हैं तो उस मसला का इस्बात पहले पहल कुरानी आयतों से करते हैं, फिर उसके बाद जो है हदीस रसूल से करते हैं। तो उनके इस रवैया के मुताबिक उन्होंने जो है अपने इस तर्जमतुल बाब यानी क़यामत के दिन अल्लाह मीज़ान कायम करेगा लोगों के अमाल को वजन करने के लिए, इसका इस्बात कुरानी आयत से है। और वह है क्या? नज़ाउल मवाज़िना यौमल क़ियामत, जो अल्लाह ताला मीज़ान, अल्लाह कहता है कि हम मीज़ान को कायम करेंगे क़यामत के दिन लोगों के अमाल को वजन करने के लिए। इंसाफ का मवाज़िन अल क़िस्त बने, इंसाफ का, अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल इंसाफ, जिसका जैसा अमल है उसी तरह तराजू में पलड़ा में रखा जाएगा। अब उसके बाद वो कहते हैं कि चूंकि वह अन्ना आमाला बनी आदम यूजन व तूजन, बनी आदम के तमाम अमाल और उनके अक़वाल को क़यामत में जो कायम होगा मीज़ान, उसमें वजन किया जाएगा। यहां तफसील एक बात है, बहरहाल बात वक्त भी जो है साथ नहीं दे रहा है, तो इतना समझ आ जाए कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों की अमाल को, उनकी अक़वाल को वजन करने के लिए तराजू कायम करेंगे। अब इसके ताल्लुक से नज़ाउल मवाज़िन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, तो क़िस्त लफ्ज के ताल्लुक से वो बयान करते हैं कि काला मुजाहिद अल कुस्तास अल अदल, कुस्तास का माना एक लफ्ज आया है दूसरी आयतों में, उसका माना है अदल की रूमी जुबान में, और किस्त ये मुक़सिद का मसदर है और इसका तर्जमा है आदिल माने इंसाफ करने वाला, और कासित एक लफ्ज आया है कुरान के अंदर, उसका माना है जुल्म, जाहिर का तर्जमा है जुल्म। इसके बाद ये सनद काला हद्दसना, ये इमाम बुखारी अब जो है अपनी सनद पेश करते हैं। तो इनसे पहले मैं अपनी सनद पेश करता हूं। मैं अपनी सनद तफसीलवार नहीं बल्कि मेरे पास है, इतना जानो कि हमसे हमारे और इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी के दरमियान 20 असातिज़ा का फासला है। हमारे और मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी के दरमियान में 20 शयूख का वास्ता है, और 21वां नंबर पर जो है ये मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी पढ़ते हैं। अब वहां से चलो, जो इस हदीस में 4 फासला है इमाम बुखारी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, 4 जो है फासला है। एक है अहमद इब्न अशकाब, मोहम्मद इब्न फज़ैल, उमर इब्न काका, अबू ज़ुरा 4 और अबू हुरैरा 5। तो 21वां और ये 5 26वां माने गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हम तक बीच में 26 असातिज़ा का जो है और 26 शयूख का वास्ता है। उसके बाद जो 27वां उस्ताद इनका इस हदीस का मेरा
खुद मोहसिन इंसानियत नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 27वां उस्ताद मेरा इस हदीस का डायरेक्ट जो है हमारे पास ये सनद है। और पहले उलमाए किराम सनद का बड़ा एहतमाम करते थे, अब तो इस वक्त सब कोई जो है इसका कोई एहतमाम नहीं है। इमाम मुस्लिम ने कहा है कि लौलल इस्नाद लकाला मनशा माशा, अगर सनद का एहतमाम नहीं, इसीलिए मुहद्दिसीन किराम ने सनद पूछते थे कि तुमने यह हदीस सीखा किससे सीखा, उनका हालात का जायजा लेते, उनको जांच पड़ताल करते, उसके बाद जो है उस हदीस को सीखते थे। और ये भी कहा हजरत अली ने कि उन्जुरु अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, तुम देखो कि दीन यानी ये हदीस को किससे सीख रहे हो, उनका अमल कैसा है, उनका अकीदा क्या है, पहले इनका जायजा लो, जायजा लेकर के उनसे हदीस सीखा करो। उन्जुरु अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, किससे तुम दीन सीख रहे हो। आज तो जो है देखा जाता है अवाम इतना ही है कि जलसे में आते हैं, तकरीर करते हैं, उनसे दीनी बात पूछते हैं, जबकि दीनी बातों से उनका कोई नहीं है, वो फतवा फराइज से उनका ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन आवाम समझती है बहुत बड़ा आलिम है, इन्हीं से दीन की बात पूछ लो। गलत समझ होता है, गलत समझ आज ही जो है जिंदाबाद करते हैं। गुज़श्ता रात की बात है, गुज़श्ता रात की बात है, एक आदमी जो है कहा कि जनाजा की नमाज 4 तकबीर में होती है, 4 तकबीर में है। अब भूल करके एक इमाम साहब दुआएं सब पढ़ा, पहली तकबीर पढ़ा, दूसरी तकबीर पढ़ा, तीसरी तकबीर पढ़ा, चौथी तकबीर जो है नहीं दिया, लेकिन दुआ पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है वो सलाम नहीं, क्या कहते हैं, तकबीर नहीं पढ़ा, उसके पहले सलाम फेर दिया। अब उसकी जनाजा हुई, दफन हो गई। किसी आलिम से पूछा, कहा नहीं उसकी जनाजा नहीं हुई है, मुर्दा को कब्र से उठाओ और उठा करके फिर जनाजा पढ़ के उसको दफन करो। कैसे आलिम है। इसलिए हजरत अली कहते हैं उन्जुरु अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, उनको पता ही नहीं है सलात के बारे में, तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम। अरे भैया एक तकबीर छोड़ दी, भूल से ये कर दिया है, लेकिन तस्लीम तो है, नमाज तो हो ही है। अब उनको जो है लाश को वहां से उठा कर फिर जनाजा पढ़ो, फिर दफन करो। आज रात का फतवा, एक आदमी फोन किया मुझको, मैंने कहा नमाज उसकी हो गई है, हाँ वो उसको उठाना नहीं है, कुछ नहीं है, नमाज उसकी सही है। तो इस तरह से ये वो हदीस उनको याद ही नहीं है कि तहरीमुहा तकबीर व तहलीलुहा तस्लीम, ये याद ही नहीं है, कहा कि नहीं उठाओ उस लाश को। बहरहाल ये इमामे सनद का बड़ा एहतमाम जो है मुहद्दिसीन किराम करते थे कि किससे तुम हदीस सीख रहे हो। इस तरह से ये मुख्तसरन यह है कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमतान हबीबतान इलर रहमान, 2 कलमा जो अल्लाह को प्यारे हैं। यह भी बड़ा राज की बात है, मैंने सबको छोड़ रहा हूं कि अल्लाह ताला की दूसरी बहुत सारी सिफातें नाम थे, लेकिन रहमान ही को यहां पर इख्तियार किया गया, और दूसरे औसाफ समी बसीर लतीफ खबीर कदीर ये सब को नहीं किया गया। इसके पीछे में यह हिकमत है। खफीफतान अलल लिसान, और वो 2 कलमा जो है जुबान पर तलफ्फुज में अदा करने में बहुत जो है हल्का है। सकीलता ने, लेकिन दोनों कलमा का जो सवाब अल्लाह ताला देता है वो सवाब जो है मीजान में क़यामत के दिन भारी होगा। और वो कलमा है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 2 कलमा क़यामत के दिन मीजान में भारी होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहते हैं कि पहले क़यामत के दिन अल्लाह मीजान कायम करेगा। कुरानी आयत से सबूत हुआ, अहदीस रसूल से भी सबूत हुआ कि जो सकीलतान फिल मीजान, इस लफ्ज से मीजान अल्लाह ताला क़यामत के दिन कायम करेंगे। तो इस कुरान और हदीस से उन्होंने साबित किया और मुतज़िले का रद्द कर दिया कि तुम्हारा अकीदा गलत है, हाँ बल्कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों के अमाल को वज़न करने के लिए ये मीजान कायम करेंगे। अब मुख्तसरन बात यह है कि ये अहदीस कोई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह आखिर में लाया, और सबसे पहले लाया था बाबो कैफा काना बदुल वही अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया, और इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो इमाम बुखारी दोनों से इशारा करना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमल इंसान करे
تو अमल करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। जिस नेक अमल में नियत दुरुस्त होती है वही नेक अमल को क़यामत के दिन अल्लाह ताला मीजान में चढ़ाएगा। उसी नेक अमल को अगर नियत में अगर जो है कुछ गड़बड़ी है, नियत सही नहीं है, दिखावा है, शोहरत है और कुछ है, यानी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए इंसान अगर कोई भी नेक काम नहीं करता है तो उसको क़यामत के दिन है मीज़ान में उठाया नहीं जाएगा, नहीं रखा जाएगा। इसलिए एक लतीफ़ इशारा इमाम बुखारी ने किया है कि कोई भी काम करने से पहले नियत को दुरुस्त करो और जो है तभी वो नेक अमाल का सवाब मिलेगा और क़यामत के दिन वजन में रखा, मीज़ान में रखा जाएगा। वो जो है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही देखा जाता है कि तलफ़्फ़ुज़ में बहुत आसानी, ये तजवीद के वसूल में है हुरूफ मुस्तालिया, ये कहता है उनमें कोई हरफ इस कलमात के अंदर नहीं है। बहरहाल तफसील तला बहुत सारी बातें थे, मुख्तसर यह है कि कोई भी अमल करने से पहले नियत को सही करें और ये करें कि अल्लाह हमारी नियत से, हमारी इस अमल के खुश हो जाएं।